Hello dear student, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. We will discuss about the different applications and the linear applications of the operational amplifier in the previous lectures. Today, we are going to start our next chapter, that is filters and oscillator. This chapter consists of total 18 marks and it is having the different types of filters along with the oscillator. Before starting the unit or the chapter for filters and oscillator, you must have to know about the vision, mission, program educational outcomes of the electronics and telecommunication department. So let's start with the vision. Here, in the last lectures or in the last units, we have already discussed about this vision and mission of the electronics and telecommunication. We just recall this vision and mission for your beneficiary. So the vision of this unit or vision of the electronics and telecommunication department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. टू नर्चर मीन्स ऐसे प्रोफेशिएंट डिप्लोमा इंजीनियर्स को आप लोगों को डेवलप करना है जो इंडस्ट्रियल नीड है. ऐसे एक इंडस्ट्रियल नीड को इसमें लेके मतलब क्या बोलेंगे उसको आप लोग उसको सोसाइटी में कैसे उसको ज़रूरत है उस टाइप से हम लोग हमारा विजन रहेगा कि हम लोग उस टाइप से प्रोफेशनल डिप्लोमा इंजीनियर्स लोगों को दें. Then, what is the mission of the electronics and telecommunication department? First, imparting quality education for to meet society and the industry needs. हम लोग बच्चों को ऐसा क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे जो कि सोसाइटी और इंडस्ट्री की नीड रहेगी. प्रोवाइड इथिकल एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट. जो इथिकल एजुकेशन रहेगा या फिर जो भी वर्क वो करेंगे उसका आउटकम क्या रहेगा, ऐसा आउटकम बेस्ड एजुकेशन दैट इज OBE हम लोग बच्चों को और उनके डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करना हमारा मिशन रहेगा. Inculcating creative thinking through the innovation and the co and extra curricular activities amongst the student. हम बच्चों में एक क्रिएटिव थिंकिंग थ्रू द इनोवेशन मतलब इनोवेशन के थ्रू बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग लाने की कोशिश करेंगे और उनको हम लोग डेवलप करने की कोशिश करेंगे थ्रू द को करिकुलर एंड द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. इन्हांस द लीडरशिप स्किल एंड द एम्प्लॉयबिलिटी और हायर एजुकेशन. बच्चों में एक लीडरशिप स्किल और उसमें एम्प्लॉयबिलिटी की एक ज़रूरत जिस टाइप का एम्प्लॉई उन्होंने होना चाहिए उनके स्किल को एनहांस करने की कोशिश हम करेंगे. Then the last one is seeking continuous improvement of knowledge and skill. बच्चों का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उनका नॉलेज और स्किल उनके बढ़ने चाहिए, इसकी कोशिश हम हमेशा करते रहेंगे. Then last one is the program educational objectives. What are the program educational objectives of electronics and telecommunication department? One is the provide job oriented skill set, socially responsible and environment friendly solution. मतलब बच्चों में ऐसा स्किल सेट प्रोवाइड करेंगे उसमें जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए स्टूडेंट, उसके बाद में फ्रेंडली सॉल्यूशन दे सके टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड. मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो वो लोग सोसाइटी में इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ये भी हमारा एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रहेगा. देन the adapt the state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment and promote higher education. हम लोग बच्चों में ऐसा एक मतलब एक कला ऐसी बच्चों में प्रोवाइड करेंगे कि उनमें से वो लोग मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड में भी वर्क कर सके विद द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड और वो हायर एजुकेशन के लिए भी हम बच्चों को प्रमोट कर सके. मतलब वो डिप्लोमा के बाद जॉब भी कर सकते हैं या फिर हायर एजुकेशन उनकी अगर इच्छा है तो वो भी ले सकते हैं. इन हिसाब से हम बच्चों को दोनों तरीके से उनको डेवलप करने की कोशिश करेंगे. देन provide solutions to broad based problems individually and as a team member by communicating effectively in the world of work. ऐसा मतलब स्टूडेंट्स ऐसे प्रोवाइड हो या फिर ऑब्जेक्टिव हमारा एक ऐसा रहेगा कि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे
खुद के डेवलपमेंट और एज ए टीम मेंबर तो कैसा भी वर्क करे, या तो वो इंडिविजुअली करे या फिर टीम में करे, उनका जो वर्क है वो कम्युनिकेटिवली इफेक्ट होना चाहिए, मतलब उनका कम्युनिकेशन के साथ साथ उनका वर्क भी इतना इफेक्टिव होना चाहिए इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ये भी कोशिश हमारी रहेगी। देन what is the course outcome? The course outcome for this unit is maintain filters and oscillator used in various electronic circuit। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट फिल्टर की डिज़ाइन करेंगे, ऑसिलेटर को डिज़ाइन करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैसे यूज़ करना है ये भी हम लोग देखेंगे। तो उसको ये सब यूज़ करने के बाद उसको कैसे मेंटेन करना है ये भी हम लोग ये यूनिट में पढ़ने वाले हैं। CO and the PO mapping. Here the CO4 getting mapped with the PO 1, 2, 3, 4, 6 and 7. आप लोगों को फिल्टर्स की डिज़ाइन में न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज अलॉन्ग विद द मैथमेटिकल बेस का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे PO1 को मैप किया। उसके बाद में कुछ हम लोग उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, उसका एनालिसिस करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन कर रहे हैं इसलिए आप लोगों का PO2 भी यहाँ पे मैप हो रहा है, क्योंकि उसका एनालिसिस कर रहे हैं ना हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों का PO2 भी यहाँ पे मैप्ड हो रहा है। देन आफ्टर दैट देयर आर सम प्रैक्टिकली बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स हियर, एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करना है, तो उसके लिए कुछ टूल्स भी लगेंगे या फिर एक्सपेरिमेंटल किट भी लगेगा, इसलिए यहाँ पे PO3 भी मैप हो रहा है। देन जो भी सर्किट्स आप डिज़ाइन कर रहे हो, सर्किट्स में आप लोग क्या करने वाले हो, डिज़ाइन करने वाले सर्किट्स में आप लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर सर्किट्स सोसाइटी के लिए ये डिज़ाइन करोगे उसमें भी आप लोग फिल्टर्स का यूज़ करने वाले हो, इसलिए आप लोगों का PO4 भी यहाँ पे मैप्ड हो रहा है। देन PO6 एंड PO7 दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एंड आप लोग इंडिविजुअल और टीम मेंबर में भी काम कर सकते हो या फिर कुछ माइक्रो प्रोजेक्ट्स भी हम लोग यहाँ पे वर्क करने वाले, इसलिए आप लोगों का PO6 भी यहाँ पे मैप हो रहा है अलॉन्ग विद द PO7। दिस इज द CO एंड PO मैपिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट। मतलब आप लोग कभी भी पढ़ने के लिए जाते हो तो व्हाट आर द प्रोग्राम आउटकम, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम आउटकम्स इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स आउटकम, मतलब आप लोगों का ब्रांच है उसका आउटकम, और CO दैट इज द कोर्स, मतलब लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, दिस इज द कोर्स, उसका आउटकम। ये दोनों का मैपिंग कितने लेवल तक हो रहा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उस हिसाब से आप लोगों का सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है। देन द लर्निंग आउटकम्स, अभी देखो लर्निंग आउटकम्स मतलब क्या, जैसे ही आप लोगों का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसका कंप्लीशन होने के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हो, मतलब फॉर व्हाट विच वर्क यू आर गोइंग टू बी एबल। तो उसके लिए देखो सबसे पहले कि आप लोग वर्किंग ऑफ द गिवन टाइप, जो भी फिल्टर आपका दिया रहेगा उसका वर्किंग आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे, डिस्क्राइब कर पाओगे। देन एक्सप्लेन विथ स्केचेस द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द गिवन टाइप ऑफ फिल्टर, उसके कुछ प्रोसीजर रहेगी डिजाइनिंग की, फिल्टर डिजाइनिंग की प्रोसीजर, उस प्रोसीजर से आप डिसाइड कर पाओगे कि ये कौन से ऑर्डर का कौन सा फिल्टर है। देन उसके बाद में अपन कुछ न्यूमेरिकल भी उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे, तो यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन टाइप ऑफ फिल्टर, प्रिपेयर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द गिवन टाइप ऑफ filter with justification. Now let's start with the types of filter. So dear student, in the last lecture we have studied about the first order low pass butterworth filter, बराबर है। तो उसमें उसके साथ साथ अपन ने उसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। मैंने ऑलरेडी बताया था कि फिल्टर्स हैविंग द 2 डिफरेंट पार्ट्स, एक्टिव एंड पैसिव, उसमें से अपन एक्टिव फिल्टर्स को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोगों का R1 और C1, R2 और C2 का यहाँ पे 2 बार कम्बिनेशन दिख रहा है, बराबर है। तो जब अपन ने फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर देखा था तो वहाँ पे एक ही R और एक ही C था, बराबर है। बट हियर द R1 एंड C1, R2 एंड C2 ऐसे 2 सीरियली कनेक्टेड आप लोगों को ये मिलेंगे फिल्टर्स के, दैट इज नथिंग बट योर RC फिल्टर, बराबर है, RC फिल्टर्स। तो RC फिल्टर्स अगर आप लोगों के सीरियली कनेक्टेड है तो इट इज़ उसके हिसाब से जितने नंबर ऑफ R और C आप लोग कनेक्ट करोगे उतने नंबर ऑफ आप लोगों के ऑर्डर्स बढ़ने वाले। तो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। बाकी डायग्राम 101% सेम है। आप लोग यहाँ पे भी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा रहे हो, एज द वोल्टेज इनपुट वोल्टेज इज कनेक्टेड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द
op amp. Here it is nothing but your input resistor and the feedback element, and this is VO. This is circuit diagram for the second order लो पास फिल्टर. आप लोग जब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालने जाओगे तो थोड़ा सा लिटिल बिट रिस्पॉन्स यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि आप लोगों का 20 dB पर डिकेड आ रहा था. मतलब आप लोग जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे थे आप लोगों का गेन भी डिक्रीज, मतलब गेन अगर बढ़ रहा है फिर कॉन्स्टेंट लेवल पे तो आप लोग की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही थी. उस हिसाब से आप लोगों ने वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स दिया था और वहाँ पे जो आया था वो -20 dB पर डिकेड. वही अगर आप लोग फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर के लिए जाओगे तो आप लोगों का आएगा कितना, -40 dB पर डिकेड. तो देखो यहाँ पे सिंपल सा एक डेरिवेशन इसका है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल लेवल से आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे द गेन ऑफ सेकेंड ऑर्डर फिल्टर निकालना पड़ेगा. द गेन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर फिल्टर बराबर है. क्या आएगा गेन आपका? गेन रहेगा मेरा AF इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन दिस RI एज इट इज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. द पास बैंड वोल्टेज गेन, द सबसे इम्पॉर्टेंट कि पास बैंड वोल्टेज गेन is equals to AF is equals to 1 plus RF upon RI, 1 plus RF upon RI, जो कि आप लोगों का रहेगा कितना, 1.586. इसके हिसाब से अपन निकालेंगे, दैट इज RF इज इक्वल्स टू 0.586 इंटू R1, 0.586 into R1, right? Hence, the higher cutoff frequency it is given by, hence, higher cutoff frequency, that is FH is equals to 1 upon क्या आएगा, 2 pi अंडर रूट ऑफ R1 R2 C1 C2, R1 R2 C1 C2, राइट. हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी R1 R2 C1 C2. अभी R1 एंड R2 दिस आर द सेम R, और C1 एंड C2 इट इज कंसिडर एज अ C. हेंस सिंस R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R, राइट, एंड C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C, बराबर है. then we will get FH is equals to 1 upon 2 pi R into C, 1 upon 2 pi R into C. The gain magnitude is given by, then we have to calculate the gain magnitude is equals to AVF is equals to under root of VO upon Vin, under root of VO upon Vin. Now VO upon Vin is equals to AF upon under root of 1 plus F upon FH रूट 4. सबका 4 है ना यहाँ पे, बराबर है, F upon FH to the 4. AF इज इक्वल्स टू कितना है अपने पास, 1 प्लस RF अपॉन RI और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस F अपॉन FH टू द 4. दिस इज अ AVF. फॉर दिस F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग सिग्नल. उसके हिसाब से अपन यहाँ पे फर्स्ट और जैसे लो पास फिल्टर का सेम ही आप लोगों को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना है इन बिटवीन द गेन एंड फ्रीक्वेंसी, जो कि आप लोगों का आएगा ऐसा, और दिस इज द, ये रहेगा आपका AF 0.707 AF, राइट, और दिस इज द हायर फ्रीक्वेंसी. तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर. सिंपल सा एक इक्वेशन है, डायग्राम निकालना है. ध्यान में रखना है कि जितने नंबर ऑफ R और C यहाँ पे कनेक्ट करोगे उतने नंबर ऑर्डर आप लोगों के फिल्टर के बढ़ने वाले.
As it is a non-inverting amplifier, you have to calculate the gain of this non-inverter amplifier 1 plus RF upon R1. पास बैंड वोल्टेज गेन यहाँ पे दिया है AF इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 इज इक्वल टू 1.586, दैट इज RF इज इक्वल टू 0.586 इंटू R1, राइट. देन हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे लिखना है, तो यहाँ पे देखो कभी भी लो पास फिल्टर की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है और हाई पास फिल्टर की जो फ्रीक्वेंसी रहती है दैट इज अ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे लिखना है FH इज इक्वल्स टू 1/2 R1 R2 C1 C2. Then R1 is equals to R2, C1 is equals to C2 is equals to C, R1 R2 is equals to R, FH is equals to 1/2 RC. उसके बाद में गेन का मैग्नीट्यूड निकालना है जो कि आप लोगों को यहाँ पे मिला था. AVF is equals to 1 plus RF upon RI upon 1 plus F upon FH to the power 4. उस हिसाब से आप लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालना है. सो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर, और इसके न्यूमेरिकल को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर. सो मैंने आप लोगों को सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर कैसे डिज़ाइन करना है ये बता दिया. तो उसको डिज़ाइन करने के लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, जिसमें से सबसे पहले डिज़ाइन का एक फॉर्मूला, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रक्शंस दिए गए रहते हैं कि कौन से फिल्टर को कैसे डिज़ाइन करना है. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू चूज़ अ वैल्यू फॉर द हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. जैसे अपन ने फर्स्ट ऑर्डर में किया था कि अगर गिवन नहीं है वैल्यू आप लोगों को किसका, फर्स्ट अगर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू गिवन नहीं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड और कंसीडर द वैल्यू ऑफ FH. To simplify the design calculation, set R1 is equals to R2 is equals to R and C1 is equals to C2 is equals to C. Then choose a value of C is less than or equal to 1 microfarad. उसके बाद में you have to calculate the value of R using the equation R is equals to 1/2 pi SC. वहाँ तक के steps same है. Finally, because of the equal resistor R1 is equals to R2 and capacitor C1 is equals to C2 value, the pass band voltage AF is equals to 1/1 plus RF upon R1. आप लोगों को मैंने इसमें बता दी हूँ. उसके कारण आप लोगों का जो गेन है वो इट इज़ इक्वल टू द 1.586, जिसका अपन कैलकुलेशन करेंगे RF is equals to 0.586 RI. Now let's consider the numerical based on the second order low pass filter. Design a second order low pass filter with high cutoff frequency of 20 kilohertz. मतलब गिवन क्या है आप लोगों को, हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. गिवन इज FH इज इक्वल्स टू 20 किलो हर्ट्स. FH इज इक्वल्स टू 20 किलो हर्ट्स. बिलो 1 माइक्रोफैरड आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करना है. तो लेट्स कंसिडर C is equals to 0.01 microfarad. 0.01 microfarad. Then we have to calculate the value of R. Then R1 is equals to R2 is equals to 1/2 pi FH into C. Here फॉर्मूला में पुट करो 1/2 pi. FH की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 10 to the power 3 इंटू 0.01 इंटू 10 to the power -6, राइट. इसका वैल्यू आप लोगों को मिलेगा 795.7 किलो ओम. 0.7 किलो ओम. नाउ आप लोगों को मैंने बता दी हूँ कि पास बैंड गेन इज इक्वल्स टू द 1.586 फॉर द सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ. कितना है, AF इज इक्वल्स टू 1.586 फॉर सेकेंड ऑर्डर फिल्टर. राइट. सो AF इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन 1 प्लस RF अपॉन R1 इज इक्वल्स टू, मतलब 1.586 माइनस 1 प्लस RF अपॉन R1. ये +1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा, 1.586 माइनस 1 RF अपॉन R1. तो यहाँ पे 0.586 RF अपॉन R1. Now consider the value of R1 is equals to 10 किलो ओम. यहाँ पे 10 किलो ओम की वैल्यू
तो यू विल गेट एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1. RF इज इक्वल्स टू 0.586 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 10. 0.586 इंटू 10 to the power 3 so that we will get here 5.86 kilo. I hope everyone understand how to calculate the value of R1, R2 and feedback element. So this is the numerical based on the second order filter. In the next lecture we will discuss about the हाई पास फिल्टर. यहाँ पे अपन ने लो पास फिल्टर देखे. नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने हाई पास फिल्टर पढ़ेंगे. उसके भी फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर आप लोगों को पढ़ना है, डिजाइन करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर वेरी केयरफुली. नेक्स्ट लेक्चर में अपन हाई पास फिल्टर को पढ़ लेंगे. उसके भी 2 पार्ट्स अपन देखेंगे वहाँ पे. सो थैंक यू सो मच.